کتنا ٹائم ہو گیا اس گھر کو؟ گھر کو بنے ہوئے 110 سال سے زیادہ ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مہر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا سیالکوٹ. ناظرین، میں آج آپ کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا گھر دکھانے لے کے آیا ہوں. چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آج آپ کو علامہ اقبال کا گھر. اس گھر میں کیا کیا موجود ہے، ان کی کیا یادیں ہیں اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. چلتے ہیں اور جا کے دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ناظرین، ابھی ہم اقبال منزل کے اندر آ گئے ہیں. ابھی ہم جانیں گے اقبال منزل کے جو انچارج ہیں ریاض شاہ صاحب، ان سے جانیں گے کہ یہ جو منزل اقبال منزل ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، اس میں کیا کیا موجود ہے اور اس میں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ ہمیں دکھائیں گے. سر السلام علیکم جی. وعلیکم شاہ جی السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا بہت شکر ہے جی. شاہ جی مجھے بتائیں کہ اقبال منزل کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کا جو گھر ہے اس کی ابتدا 3 کمرے ٹھیک ہے. اور ایک صحن سے ہے، جو 6 فروری 1861 کو علامہ کے دادا شیخ محمد عبداللہ اور شیخ محمد رفیق نے 150 روپے میں خریدی. اور جناب یہ شجرہ نسب ہے ان کا، اور اس میں ان کے بڑوں کا نام لکھا ہے جو حضرت بابا صالح کے نام سے ہے. تو کسی ہندو پنڈت کا نام محمد صالح تو ہو نہیں سکتا، تو لہذا یہ مسلمان ہیں سارے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شاید ہماری تحقیق کمزور ہے. شاہ جی ابھی اس کے علاوہ بتائیں ہمیں کیا دکھانا ہے آپ کو؟ اس کے علاوہ جی آپ کو وہ کمرے دکھاتے ہیں جو 1861 میں بنے. کیا ان کے فرش بھی وہی ہے جو کہ آپ بغور خود دیکھ سکتے ہیں. آئیے آپ کو دکھائیں. شاہ جی یہ کیا؟ اب یہ جی اس کمرے کے باہر ایک تصویر ہے جس میں غازی علم دین کا جنازہ ہے جو علامہ اقبال 1929 میں خود میاں والی جیل سے لے کر آئے تھے. اور ایون کہ بلکہ ان کو قبر میں لحد میں بھی ڈاکٹر صاحب نے خود اتارا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اتنا غلام نظر آیا پڑا کہ علم دین نظر نہیں آتا تھا. تو عشق میں کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ عشق کی آنکھیں نہیں ہوتی. تو لہذا حضور پاک سے جو عشق تھا علم دین کا وہ ایسا لازوال تھا کہ اس کو شہادت نصیب ہوئی. جہاں پہ ہم اس ٹائم موجود ہیں یہ کمرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کمرہ ہے یہ اس وقت جب یہ گھر بنا ہے تو یہ علامہ کے دادا شیخ محمد رفیق نے بنایا، اور اس کے فرش بھی وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ریڈ لائم کا استعمال ہے. چھت 1910 کا پڑا ہوا ہے. اور اس کے اندر جو تصاویر ہے اس میں ایک تصویر میں علامہ اقبال کی جو پہلی بیوی ہے کریم بی بی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی اولاد آفتاب اقبال بیٹا ہے، معراج بیٹی ہے. جبکہ دوسری تصویر مختار کی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. میں ایک عدد آرام کرسی پڑی ہے جس میں شاید اقبال بیٹھتے ہوں گے جب کبھی تھک جاتے. پھر ایک جھولا پڑا ہے جس میں اقبال کی والدہ کبھی ان کو لٹا کے آرام سے ہلاتی ہوں گی. شاہ جی یہ جو دوسرا کمرہ ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرا کمرہ جو ہے یہ وہ ہے جس میں علامہ اقبال پیدا ہوئے 9 نومبر 1861 صبح 5:14 پہ، کیونکہ اس وقت یہ گھر صرف 3 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا. اب اس میں ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی تصویر لگی ہے جس کا یوم وفات 9 نومبر 1914 ہے. یہ کمرہ جی اصل میں ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کے استعمال میں تھا جب وہ یہاں خود رہتے تھے. اور یہ اس گھر کا مردان خانہ ہے. جو پیچھے کمرے آپ کو دکھائے وہ اس گھر کا زنان خانہ تھا. اور اس کمرے میں علامہ صاحب کا جو ایجوکیشنل ریکارڈ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی مڈل سے لے کے MA PhD تک ڈگریاں لگی ہوئی ہیں. اور وہ اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو آسانی مل سکے. کہاں سے ڈاکٹر صاحب نے تعلیم حاصل کی. اس میں ڈاکٹر صاحب کے اسکول کے مدرسے کی تصویر ہے. جو سیالکوٹ میں FA تک تعلیم تھی وہ ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لاہور چلے گئے ان کی تصاویر ان کی ڈگریاں سے لگی ہوئی ہیں. شاہ جی یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے جوید اقبال صاحب کی، ان کے پوتے تھے یہ؟ جاوید صاحب کی جی پلیس آف برتھ بھی یہی گھر ہے. ان کا وہ کمرہ اوپر ہے کیونکہ ان کے پتہ منیب اقبال صاحب یہاں آتے رہتے ہیں.
तो उन्होंने जाके अपने वालिद मोहतरम को वो अपनी तस्वीरें भी दिखाते थे और वो जो यहाँ से फ़िल्म बना के ले वो भी दिखाते थे। तो फिर उन्होंने एक किताब थी तलुए इस्लाम, वो उसके ऊपर आप देख सकते हैं वो लिखा ना, जो भी ये सतूर पढ़े इसे हमारी तरफ से इकबाल मदनी ने खुश आमदेद दिली दुआएं कबूल फरमाए। तो ये जावेद साहब के अपने हाथ का लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये जो बेड है ये वाला, और मज़े की बात यह है कि 2015 में ये अगस्त का महीना है, शायद अक्टूबर में उनका इंतकाल हो गया था। तो ये मुझे दी गई थी छोटे से, मैंने फिर उसको बड़े साइज में बनाई ताकि और लोग भी दे सकें। अभी आपको इकबाल मंजिल के हम दूसरी मंजिल पे लेके आ गए हैं। अभी चलते हैं और मज़ीद दिखाते हैं आपको कि इस मंजिल में इकबाल की कौन कौन सी यादें मुबस्ता हैं और यहाँ पे क्या क्या है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ताजी मुझे ये बताएं, ये जो हाल है इस बारे में क्या कहते हैं? ये हाल कमरा भी असल बुनियादी तौर पे 2 कमरे थे। ठीक है। तो जब हुकूमत ने ख़रीदा तो फिर उन्होंने इसके अंदर से एक दीवार निकाल के उसको बड़ा कमरा बना दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइब्रेरी जो आज नीचे चली गई वो यहाँ होती थी, तो यहाँ ही लोग बैठकर अखबारें और किताबें पढ़ते थे। शाह जी इस कमरे के बारे में क्या कहते हैं? अब ये कमरा जनाब उनका उस वक्त खाने का कमरा था। खाने का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें छोटी सी आर्च थी जो बंद कर दी गई, ठीक है। उस तरफ छोटा सा किचन है जिसमें आप थोड़ा बहुत खाना पका कर यहाँ बैठ के खा सकते हैं। अंगीठियाँ अभी तक खुली हैं ऊपर से। इसके ऊपर एक स्टोर है, ठीक है जी, जिसमें इतनी गुंजाइश है कि एक बंदा रह भी सकता है और घर का फालतू सामान रख सकते हैं। नाज़रीन अभी हम आपको एक अल्लामा इकबाल की वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। उनका हुक्का, उनके खाने के बर्तन और उनकी इस्तेमाल की चीज़ें दिखाते हैं आपको। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हुक्का पड़े जब घर में डॉक्टर साहब आते तो ये पीते थे, ठीक है। और जब बाहर जाना तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक लंबा पाइप लगा होता था ताकि डॉक्टर साहब 2 कश लगाते थे, बाकी जो कश वो दूसरे साथी लगाते थे। जैसे शिमले की तस्वीर आप देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा। अब ये प्लेट है, इसके अंदर जो सुराख है उसमें आप गर्म पानी डाल दें, कॉक के साथ बंद कर दें, ठीक है। खाना जो गर्म रहेगा इसको किसी चीज़ से ढक दें, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी किसी के मतहत काम नहीं करते थे, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। और ये होल्डरिंग पॉट जो है ये उन्होंने अपनी बहन ज़ैनब को दी थी, जिसकी शादी वज़ीराबाद में हुई थी। वो जो बर्तन पड़े हैं ना, जिसको करमंडल आप कहते हैं, ये उस वक्त टैंकी नहीं होती थी जो आजकल हमने टैंकियां बना ली, तो इसमें ज़रूरत का पानी रख लेते थे वो, ताकि जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल किया जा सके। इसको करमंडल कहते हैं। ये अल्लामा इकबाल के जी बड़े भाई का कमरा है। इसमें 2 आप उनके लिखे हुए ख़ात के खतूत देख सकते हैं, जिसमें इस बाज़ार का असल नाम बाज़ार चूड़ीगरा लिखा गया है, और एक अदद यहाँ पे कालीन भी डिस्प्ले किया गया है जो कि अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल था। देखें जी, पूरी बिल्डिंग के अंदर जो सबसे अहम और ख़ास कमरा है जिसका ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल से डायरेक्ट है वो ये कमरा है, क्योंकि डॉक्टर साहब जब लाहौर से आते तो इस कमरे में ही ठहरते थे। और इसके अंदर जो कुर्सियां हैं ये बाकायदा बिलवास्ता उनसे इनका ताल्लुक़ है। और मज़े की बात है कि इस कमरे में डॉक्टर साहब आखिरी 1934 में आए, क्योंकि उनकी बड़े भाई की बड़ी बेटी की शादी थी, उसके निकाह पे उनके साइन मौजूद हैं। वेरी गुड। की बड़ी बेटी जिसकी शादी के लिए इकबाल को इस घर में आना पड़ा 1934 में। ठीक है। फिर साथ उनकी तीसरी बेगम है जिसका नाम सरदार है, उसकी औलाद जावेद इकबाल और मुनीरा बानो है। ठीक है। फिर उनके बड़े भाई की बेगम है, ठीक है जी। फिर नीचे गवर्नमेंट कॉलेज, वो उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बेटी है जिसका नाम शेख अता मोहम्मद है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और इस कमरे का जो असल वजह ये है कि इस कमरे में अगर आप कभी अलहदा बैठें तो आपको एहसास होगा कि शायद इकबाल यहाँ मौजूद है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े चीफ जस्टिस को यहाँ पे आके नफल पढ़ते दिखा है, और बाकायदा जाए नमाज मांग कर। उसमें नसीम हसन शाह भी शामिल है, अफजलुल्लाह भी शामिल हैं, ख्वाजा शरीफ भी शामिल हैं। ये लोग यहाँ के बाकायदा जाए नमाज मांग कर नफल पढ़ते थे। कब से यहाँ पे आप? मुझे जी इस घर में जब मैं आया था 1987 में आया था। अच्छा, ठीक है। और आज तकरीबन मुझे 34 साल से ज़्यादा हो गए। माशाअल्लाह। और इस घर को मैंने बड़े नशेब अफराद भी देखे हैं। जब प्रेस कहता था ये गिर जाएगा,
अहलिया सियालकोट कहते थे ये गिर जाएगा, इसको कौन बचाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है ये ना गिरा है ना गिरेगा। कितना टाइम हो गया इस घर को? मुझे 34 इसका घर को बने हुए 110 साल से ज़्यादा हो गए इस वक्त। 110 साल से ज़्यादा हो गया। मुझे बताएं कि इकबाल की फैमिली से यहाँ पे कौन कौन आता है? अल्लामा इकबाल की फैमिली से जी यहाँ पे उनके पोते हैं मुनीब इकबाल, वलीद इकबाल, फिर उनके नवासे हैं असद इकबाल, मियाँ इकबाल, बल्कि उनकी बेटी मुनीरा इकबाल भी यहाँ होकर गई है। देखें जी, इकबाल उस वक्त भी देख रहे थे कि मुसलमानों को कैसे यूनाइट किया जाए, तो उन्होंने एक शेर कहा था, एक हों मुस्लिम हरम की पास पानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। अब नील कहाँ है? मिस्र में। काशगर कहाँ है? रशिया में। तो वो कहते थे जब तक ये यूनाइट नहीं होंगे तो हरम की पास पानी नहीं होगी। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये थी इकबाल मंजिल, और देखी आपने इकबाल की कुछ यादें, कुछ चीज़ें, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारा पेज NPG मीडिया और हमारा चैनल NPG मीडिया सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दे इजाज़त। NPG मीडिया, सियालकोट।